Greetings to everyone world over, all our brothers and sisters across the globe. Om Shri Ganeshaya Namo Namah. It's such an indeed great pleasure to have all of you in a very special evening, very special series creation, manpower, human resources development, your aptitude, your attitude, your way of working, your customer service, your customer delight, your amazing any special program related to this particular subject, what kind of an openings we are having. You've got green, green, green all around, and you've got a beautiful hotel at the back, and you can see the frontal part of it. There are beautiful lawns also right in front of this hotel. It's in Bhubaneswar, it's in Odisha. Ladies and gentlemen, it's a hotel Sandy Towers, which I'm talking about. Such a beautiful hotel. Recently, when I visited and when I saw the ambience, the grandeur, the kind of efforts what they have put in, but at the back of any unit is the manpower, is the human resource. So that's why we are going to focus on education, technology, because anybody who is the chairman, the managing director, the head of the institution or organization, for that matter, travel agency, tour operation, hotel, restaurant, they can spend money. They have got a vision, but somebody got to deliver it for them. And that's the human resource. And every person in organization matters. Every person. If anybody thinks that my role is small and other person role is big, no role is small, no role is big. The person who is sweeping the floor in a particular ambience area and a small electrician who is repairing your electricity, your bulb, your air conditioning and other things, and the person who is providing you the laundry, the crockery, and who is keeping the gallery and the whole ambience of the hotel, they are as important as the general manager of the hotel. Start taking pride, because that's what you all feel. Abroad, there is no difference between a person A and person B. The moment you finish your work, because when you are at work, you are at work and you give your 100% to that particular work. Any organization will succeed world over depending on how the team, how the unity, how do they support each other. Have you seen sometime in the airlines, आप किसी एक air hostess से कहते हैं, excuse me, can I get a glass of water please? And the other air hostess just heard, she looked at your seat number, she went, and other air hostess, she was busy. The other person came and delivered the water to you, to whom you had not placed the order. It's a teamwork. It's all of us together. जिस organization के साथ काम करते हैं, उसके लिए दर्द होना चाहिए, उसके लिए प्यार होना चाहिए, उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, उसके लिए शिद्दत होनी चाहिए, उसके लिए पैशन होना चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन और डिवोशन होना चाहिए. जब आप काम पर हैं, तो आप काम पर हैं. और ये महसूस कीजिए उस समय कि you are the king and the queen of that particular hotel. Welcome to yet another evening, wonderful evening, green evening. आज बहुत तूफान आ रहा है. Heavy storm is there in entire northern India. This afternoon there was a small mild earthquake as well. So a couple of things are happening. In spite of everything, the show must go on and we must learn at least one new skill. And at the same time, we should put in our best of efforts, whatever we can do. Atithi Devo Bhava, the hospitality industry. Every customer, every person,
And anybody who is coming to our unit is very important for all of us, ladies and gentlemen. There are different sectors of the hospitality industry. You've got front office, right before front office, you've got the people standing outside. How do they smile? How do they greet? How do they treat? How do they open the door? How do they get you inside? All that still you appreciate, even when the technology is seeping in. Coming to the front office and taking hardly any time and moving right to your room, all the services, the welcome drink which you get over there, and thereafter you feel comfortable. The ambience outside your window, when you just remove the curtains and what all you can see outside of that window, how the world is, how beautiful the world is, what exactly is the ambience being created. Then your food services, your beverages services, your housekeeping, your lodging, other facilities, your recreational services. Is there something going on in your hotel every Saturday, Sunday? Or do you have some kind of a music, like somebody, a ghazal singer, who comes every evening and sings for you, and he sits in one corner, but he draws the crowd, he gets the people right over there? Is something very important which you all have to understand. किसी एक कॉर्नर में एक गजल सिंगर है, ओल्ड मेलोडीज है मोहम्मद रफी की, और उसके साथ किशोर कुमार की, और कुछ गजल्स आ रही हैं और आप उसको सुन रहे हैं, उसी के साथ साथ आप खाना खा रहे हैं, उसी के साथ अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं. All those kind of things, because the person who has come, they want to relax, they want to enjoy the evening. And then what kind of a travel desk you have got, what facilities, what add-on values, and even your banquets, whatever is being used, what kind of a services are you providing from there? Every customer is important. Every customer, anybody who is coming over there, every person is important. Sales people, marketing people, PR people, customer delight people. At the same time, anybody who is directly or indirectly coming in contact with the customer or giving behind the curtain services, हर इंसान हॉस्पिटैलिटी के अंदर, होटल के अंदर इंपॉर्टेंट है. There are 6 rules which generally we follow, and these are the golden rules coming from the times immemorial. When you talk about, first of all, be kind and optimistic, and always have a hope that आज से कल का दिन बेहतर होगा. Having an intellectual curiosity, हमेशा ये सोचना, हर कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज से, उसकी स्टे से ये समझना कि वो हमारे होटल को क्या सजेशन देकर जा रहे हैं, हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं, और हमारी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स कैसे हैं. और हर कस्टमर के प्रति, चाहे कोई सिर्फ एक कप चाय पीता है, कॉफी पीता है, स्नैक्स लेता है, इवनिंग टी के लिए आया है, डिनर के लिए आया है, होटल में स्टे कर रहा है, all variety of the people you have to take into consideration. You got to have an empathy for everybody, and you got to have a self awareness. हमारे होटल की, when you talk about हमारे होटल की strength क्या है, हमारे होटल की opportunities क्या है, untapped opportunities क्या है, and most important is हमें किसी और को जवाब नहीं देना, हमें अपने आप को जवाब देना है. You got to have an integrity. जब तक आपकी मोहब्बत नहीं होगी आपके प्रोफेशन के साथ, आपके काम के साथ, you will not be able to deliver your 100%. तो जो लोग हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, कभी ये मत सोचिए मुझे उससे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसकी आज जल्दी छुट्टी हो गई, मेरी देर से छुट्टी हो रही है, मैं अगर देर से आऊं तो मुझे कोई देखेगा नहीं. आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना है. होटल के किसी कॉर्नर में भी, किसी जगह आपको कोई अनवांटेड चीज मिलती है, कागज मिलता है, टुकड़ा मिलता है, उसको डस्टबिन में डालना, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि नहीं है, कौन सी चीज, हर चीज सिस्टमैटिक काम कर रही है कि नहीं. और हमेशा एक आपकी बॉडी में एनर्जी नजर आनी चाहिए, फुर्ती और सफुर्ती नजर आनी चाहिए, आपका पैशन नजर आना चाहिए, आपका जुनून नजर आना चाहिए. देयर आर 4 phases ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस. हम गेस्ट को जब लेते हैं, गेस्ट की सर्विसेज को लेते हैं, एक होता है प्री अराइवल, आने से पहले, एक होता है अराइवल पर, जब आ गए, उसके बाद 3rd phase इज स्टे, जब वो आपके यहाँ ठहरते हैं, चौथा डिपार्चर, जब वो जाते हैं तो क्या वो रिपीट टूरिस्ट आएंगे.
तो आप पहली स्टेज से लेके चलिए। जब प्री अराइवल है तो इंक्वायरी है, रिजर्वेशन है, पिकअप है, आने के बाद में एक वार्म वेलकम है, अराइवल के आने के बाद उनका बैगेज कैसे हैंडल करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे है, उनकी चेक इन कैसे है, ओपनिंग जो गेस्ट का हमारा बेसिकली एक वार्मथ है, और उसके बाद कौन सा रूम उनकी पसंद का, अगर वो टूरिस्ट पहले आके हमारे पास ठहर चुका है, उसको कौन सा कमरा पसंद है, उसको कौन सी विंडो वाला कमरा पसंद है, उसको कौन सा किस तरफ को देखने वाला कमरा पसंद है, और उसके बाद उसको कोई स्पेशल किट चाहिए, स्लीपर चाहिए, बाथरूम में कुछ चाहिए, एक वेलकम किट भी हो सकती है, वेलकम ड्रिंक भी हो सकती है। उसके बाद आपकी ऑक्यूपेंसी है। ऑक्यूपेंसी के टाइम में आपके होटल में ठहर रहे हैं, कल को मॉर्निंग में उनको पुरी जाना है, कोणार्क जाना है, तो आप कौन से टूरिस्ट गाइड को लेंगे, किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कैसे उनको एंजॉय करवाएंगे, हाउ विल यू मैनेज द गेस्ट सर्विसेज, हाउ विल यू मैनेज द गेस्ट अकाउंट्स, एंड यू शुड मैनेज ऑल्सो ऑल द थिंग्स, अगर किसी गेस्ट को मान लीजिए कोई एटीएम का फैसिलिटी चाहिए, किसी गेस्ट को किसी और को बुलाकर एंटरटेन करना है, और उसके लिए कोई छोटा एक डिस्कशन रूम चाहिए 4 लोगों के बैठने का, ऑल दोज माइनर थिंग्स आल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। उसके बाद आपका चेकआउट का प्रोसीजर क्या है डिपार्चर के टाइम में, गेस्ट की जो पेमेंट की क्लियरेंस है इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, उनका जो बैगेज है इट शुड बी केयरफुली हैंडल्ड एंड विद अ स्माइल। जब आप उनको ड्रॉप करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, लीव एन इंप्रेशन दैट यू लव योर होटल, you love your organizations. There are 3 C's in the hospitality. Crisis कहीं भी आती हैं, प्रॉब्लम्स कहीं भी आती हैं, डिफिकल्टीज कहीं भी आती हैं, आप उनको सॉल्व कैसे करते हो, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू सी। और 3 C's क्या हैं आपके हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, क्राइसिस मैनेजमेंट में? फर्स्ट ऑफ ऑल योर कंसर्न, योर कंट्रोल एंड योर कमिटमेंट। इन 3 चीजों को लेकर चलेंगे तो कभी भी आपके होटल में कोई तकलीफ नहीं आएगी। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ए होटल गेस्ट, देयर आर फैमिली ट्रैवलर्स, देयर आर कन्वेंशनल वकेशनर्स जो आते ही हैं, कुछ हेल्थ के लिए हैं, कुछ वेलनेस के लिए हैं, कुछ बेबी बूमर्स हैं, कुछ मिलेनियल्स हैं, कुछ जनरेशन जेड है, कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, कुछ डिजिटल वर्कर्स हैं, क्योंकि अब काम और हॉलिडे में कोई फर्क नहीं रह गया है। So that also you got to see. There's something known as in a hotel called HEART method. अब HEART क्या होता है? H is to hear, E is to empathize, A is to apologize, R is to respond, T is to thank. This is something very important. ये acronym है which we use in the customer service, particularly any industry, particularly hospitality industry, to help those dealing with the customer concerns and navigating the effective responses to them. That is something very important. Guest ka experience is most important for us in the hospitality industry. अब 3 main components हैं आपके guest experience के लिए. First of all, communication. Number 2, convenience. Number 3, choice. Communication कैसा है, convenience कैसी है, और उनकी choice को आप कैसे meet करते हैं, आपके पास रिपीट टूरिज्म आएगा ही आएगा। कोई वजह नहीं है कि वो आपके पास दोबारा ना आए, आपके होटल को दोबारा विजिट ना करें। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर ट्रेंड्स, ये सब चीजों को जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम लेकर चलते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेक्नोलॉजी आपको सबको पता है। चाहे आप एजुकेशन ले रहे हैं, स्किल्स ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करने के लिए, तो इमेजिन कीजिए कि आप कोई भी चीज अपनी सर्विस के साथ साथ इनोवेट कर सकते हैं। यू गॉट टू बी क्यूरियस एंड इनोवेटिव। करंट एजुकेशन सिस्टम में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज हैं जिनको समझ के लेकर चलना पड़ेगा। वी कैनॉट हैव थ्योरी बेस्ड और ए रोट लर्निंग एनी मोर। ये एक वो प्रोफेशन है हॉस्पिटैलिटी का जहां सब कुछ प्रैक्टिकल है। तो क्या हमारे पास उतने ट्रेनर्स हैं? क्या हमारे पास उतने स्किल्ड ट्रेनर्स एंड मास्टर ट्रेनर्स हैं? हमारा जो करिकुलम है क्या वो आज के टाइम में, पोस्ट पैंडेमिक टाइम के अंदर एप्लीकेबल है? जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी कल जरूरत पड़ेगी। जब तक बच्चा यहां से पास आउट होकर जाएगा, विल देयर बी समथिंग
which we can take into consideration. That is something very important which we have to see. Now, National Council of Hotel Management, अब तीन चीजें मैं अलग अलग आपके साथ लेकर चल रहा हूं, because most important for you is, I'm not naming anybody, but you got to understand that you have to choose one of the finest institution where you should take your training. That is something very, very important. अब नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आईएचएम है, अब उसको भी जब आप देखेंगे तो हर आईएचएम का भी आपस में वह हर जगह पर आप जाकर देखिएगा, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल, इट डिपेंड्स ऑन द टीम, इट डिपेंड्स ऑन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. एट द सेम टाइम बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ताज का औरंगाबाद में है, ओबरॉय का ओसीएलडी का प्रोग्राम है, फिर उसके बाद आईटीसी अपना वेलकम ग्रुप उनका प्रोग्राम है, मणिपाल जो है होटल जो इनका मणिपाल का कॉलेज है उनका अपना जो है उस तरीके का एफिलिएशन है. देन देयर आर लॉट ऑफ अदर प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां पर ये सारा कार्यक्रम चलता है. Way back in 1988-89, I was associated, because coming from a defense background, I was a part of setting up the Hotel Management Institute in Bangalore for the armed forces. That was something very nice, which we all worked together. 4 कमरों से ASC सेंटर के अंदर पहले एक छोटा सा सेटअप खोला और उसके बाद फिर हम सारी चीज को आगे लेकर चले. जब होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी के प्रोफेशंस की बातचीत करते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, they must be willing to work on different areas. They should be versatile. They should not cry or crib, मुझे यहाँ लगा दिया, ये एरिया ठीक नहीं है, ये एरिया ठीक नहीं है. सब एरियाज खूबसूरत हैं, सब एरियाज बहुत अच्छे हैं. It all depends on किस एरिया के अंदर. Rather you should take a turn to all the departments and learn the management part also, food and beverages also, housekeeping also, front office also, sales also, marketing also, banquets also, MICE also, and couple of other things which can take care of in your industry is very important. The advantage of the hospitality education are, first of all, hospitality की जब आप education ले रहे हैं तो ये practical training है. हर चीज के अंदर प्रैक्टिकल ढूंढिए, हर चीज में प्रैक्टिकल कीजिए. चाहे आपके घर में ममा के साथ किचन में काम कीजिए. ट्राई एंड वर्क आउट सम न्यू डिश, ट्राई एंड वर्क आउट न्यू वे ऑफ सर्विंग, try and serve your own family, your own relatives, small parties, small get-togethers, birthday parties. You will be very confident by the time you'll reach the hotel unit and you'll start working over there. Ability in most aspects of hospitality की जो हमारा profession है, आपकी ability होनी चाहिए कि आप different areas में, you must have a better understanding of inter-relationship, inter-dependency between the various functional areas. And you should have analytical skills, you should have research skills, and you should have practical skills. Hospitality is very amazing. Importance of skilled professionals in the hospitality, it's a very, very important, and there's a lot of challenge. कुछ hotels बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, उनका एम्बियंस बहुत अच्छा है, पर चैलेंज कहाँ है? वहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी स्किल्स का, उनके एटीट्यूड का, उनके एप्टीट्यूड का, उनकी इंक्लिनेशन का. आप कर गुजरने के लिए, जब आप कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप ये कहेंगे कि ये होटल तो मेरा है, मैं किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हूं या करती हूं, I have to give the best of. And for that matter, skills are very important, training is very important, and as a professional, you got to learn the 3 E's for customer service. You know, जब आप किसी को ease करते हैं, तो this is 3 E's. You should have empathy, you should have equality, and you should have excellence. जो भी काम करो, इतनी खुशी से करो. और देखिए, एजुकेशन में बहुत सारे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं. कॉलेज को, इंस्टीट्यूशंस को, सब लोगों को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा. यू गॉट टू स्टे अहेड ऑफ टाइम्स. अगर आपको प्रोग्रेस करना है, then there is a immersive learning, there's a virtual learning, there's a virtual reality, and there's a hybrid learning, flip learning, online learning, and self-paced learning that is also coming. अब जो टेक्नोलॉजी है, it's coming in a very big way in a hospitality, and that is called smart technology. Automation happening in the back office,
in the entire hotel, which general public doesn't come to know. पर पीछे बहुत कुछ हो रहा है automation में. And there is a revolution which is coming up with the technology in the guest service. Because ऐसा कुछ amazing हो रहा है और हर रोज हो रहा है, and technology जो है वो सब कुछ चेंज कर रही है. Seamless services, personalized guest services, और गेस्ट को ये महसूस किया जा रहा है और करवाया जा रहा है कि you are ultimate for us. That is something very important. उसी तरीके से ladies and gentlemen, when you're talking about technology, you know, smart devices, आप अपने मोबाइल पर ही हर चीज चाहते हैं कि आपको किसी के पास ना जाना पड़े, सब कुछ वहां पर मिल जाए. रोबोटिक्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, और वर्चुअल जो वॉलेट है उनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ऑटोमेटेड होते हैं पार्किंग वगैरह में, और फास्ट दे आर बिकमिंग द रियलिटी नाउ रेस्टोरेंट्स में, एंड ड्राइविंग कार्स जो ड्रॉप ऑफ करने के लिए, थर्ड पार्टी साइट्स के लिए, और गैराज में, एंड रिट्रीव रोबोट्स बहुत सारी जगह में आ रहे हैं. एंड दिस स्मार्ट फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज आल्सो. Sustainability in the hotels is one of the prime factor which is being taken into consideration. That is monitoring the air quality, reducing the energy wastage, and monitoring the water consumption and waste reduction in all respects. That is the priority in 2023. Look at this ambience. Look at this wonderful, you know, I'm going to say, look at that architecture. And you know, you expect in hospitality industry, it is moving towards sustainable practices the best possible way, and that's why we all have to take on. Now, what could be the top trends in the hospitality in the coming times? You know, when you talk about natural designs, sustainable and ecotourism, healthy food and beverages, people do not want to take any more पैक ड्रिंक्स एंड यू नो जो पहले से स्टोर किए, जैसे यार फ्रेश जूस मिल सकता है, फ्रेश फ्रूट सलाद मिल सकता है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, बिकॉज आपको कोई चीज ना छूनी पड़े, बिकॉज सेफ्टी एंड हाइजीन, ऑल दैट इज ऑल्सो कमिंग. एंड कस्टमर जो है, दे वांट नाउ पर्सनलाइजेशन, एंड दे वांट कि पर्सनल सर्विस मेरे को दो. टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू डोमिनेट एवरीवेयर. Along with this sustainability, health and wellness is going to be another very important factor. Local tourism भी बहुत grow करेगा, because कई बार हम seasonality की बातचीत करते हैं, और अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी apprehensions हैं, हम travel करें ना travel करें, ये ना हो कोई infection हो जाए, किसी जगह कोई और problem आ जाए. So health and wellness, they will be at the center stage when we will talk about sustainability and when we will talk about technology. इन सब चीजों को लेकर अब बहुत सारे फ्यूचर ट्रेंड्स होने वाले हैं. वर्चुअल लग्जरी एक्सपीरियंसेस हैं, कॉन्टेक्टलेस यू नो सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग इन ए वेरी बिग वे. आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बातचीत करते हैं तो AR VR के साथ मेटावर्स एंड होटल्स, everything you need to know is coming in a very big way. To do the right hospitality business in future, you need to focus on 4 key areas. अगर आप अपने होटल को अच्छा चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीज आए और गेस्ट आए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेस्ट बिहेवियर, द पीपल दोज आर विजिटिंग योर प्लेस, व्हाट आर देयर डिफिकल्टीज, व्हाट डू दे वांट, वो कहाँ क्या एंजॉय करना चाहते हैं, किस दिन आते हैं, वीकेंड में आते हैं, वीकडेज में आते हैं, कितने बजे आते हैं, कितनी देर बैठे हैं, किस कॉर्नर में बैठते हैं, कैसा म्यूजिक चाहते हैं. ऑल दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर एंड मेजरेबल स्ट्रेटेजी, that is also to be taken into consideration. Strong change management, technical capability, now that is also we have to take into consideration. These are the 4 areas which we got to really focus on if we want to run our unit professionally. Now changing dimension in hospitality की जब हम बातचीत कर रहे हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी की बातचीत कर रहे हैं, स्किल्स की बातचीत कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसीज की बातचीत कर रहे हैं, ट्रेंड मैन पावर की बातचीत कर रहे हैं, अब अच्छे लोग टिकते भी नहीं हैं, बिकॉज दे मूव ऑन. कहीं उनको 500 रुपए एक्स्ट्रा मिला और 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिला, तो they moved on to that particular unit. They say it's okay, fine, this hotel is quite good, but I'm getting 1000 rupees extra.
सो एकेडमिया और इंडस्ट्री, जब हम इसकी बातचीत करते हैं और सोसाइटी एज अ होल बातचीत करते हैं, इंडस्ट्री कहती है हमें ट्रेन मैन पावर चाहिए, एकेडमिया कहते हैं हम ट्राई कर रहे हैं टाइम के हिसाब से। जब ये बच्चे इंडस्ट्री में पहुंचते हैं तो वो ये कहते हैं हमें इनको 3 महीने 6 महीने फिर दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, इनको अपने हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई पर्सनली फील स्टार्ट इन्वॉल्विंग कॉर्पोरेट इन योर होटल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये जो आपके कॉर्पोरेट हैं, इनको अपने इंस्टीट्यूट में बुलवाइए, इनको अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने इंस्टीट्यूशंस में बुलवाइए, इनको आने दीजिए। जब आप सिलेबाई बना रहे हैं तो तब भी इनको इन्वॉल्व कीजिए, और हफ्ते में आपके यहाँ एक अच्छा गेस्ट लेक्चरर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो एक्चुअल इंडस्ट्री को समझता है और डील कर रहा है आना चाहिए। अब देखिए, बिफोर पैंडेमिक वी हैड अ फिनिशिंग स्कूल and almost 52,000 youth have gone from there, and almost I think 36,000 35,000 teachers capacity building program has been done. That's in the pre-pandemic time, and post-pandemic we have gone totally digital from the chamber. Everything is available in a digital way. You can see everything whatever you need, and digital inspirational lab, that is दिल से जब कोई काम होता है उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। You have to take that into consideration. थोड़ा देख लेते हैं इसके अंदर भी। इंसान के अंदर एक खास चीज होती है जिसकी वजह से आज वो इतनी तरक्की कर पाया है, जो जानवरों में नहीं होती, जिसने अपने लिए इतनी सारी चीजें बना ली है। हम बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकर मोटिवेट होते हैं, जानकर हैरान भी होते हैं, ये जानकर कि उन्होंने इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। इन सब का कारण सिर्फ एक ही चीज है, इमेजिनेशन। आपको याद होगा हमने आपके साथ इमेजिनेशन पे बातचीत की थी, याद है? Okay, so when we talk about it, the 6 full life aspects क्या है? हर एक बच्चे को ये समझना पड़ेगा जो हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हैं। First of all, whatever you are learning, you must know why you are learning. If you are acquiring any skill, why are you acquiring? Number 3, आप किस स्किल के लिए और किस एरिया के होटल के लिए आप पैशनेट हैं। आप फ्रंट ऑफिस के लिए हैं, F&B में हैं, हाउसकीपिंग में हैं, माइस इंडस्ट्री में हैं, बैंक्वेट्स में हैं, प्रिपरेशन में हैं, ऑपरेशन में हैं, मैनेजमेंट में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, आपकी पर्सनैलिटी पब्लिक रिलेशन वाली है। ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके की है, किस चीज की है। उसी तरीके से जो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग है और जो यूथ की एम्पावरमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, विच वी गिव इन अ वेरी इनोवेटिव वे थ्रू आवर डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब। अब जो मोड आ गया है वो फिजिटल है। सब कुछ क्लास में बैठ के नहीं हो सकता, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, फिजिकली देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को लेके चलना पड़ेगा। ये हमारी डिजिटल इंस्पिरेशनल की हम बातचीत आपसे बाद में करेंगे। डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब जो है, इट्स बेसिकली टू अनलीश द पावर व्हाटएवर यू हैव गॉट इनसाइड यू। और डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब में आने के बाद यू विल हैव मेंटल वेलनेस, you will have physical wellness, professional wellness, social wellness, economic wellness and global wellness। यहां पर हम सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल, ट्रेड स्किल, ग्लोबल स्किल, सब चीजों को लेकर चलते हैं। ये चारों हिस्से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ये हमारे साथ हैं और इनको हम आपके साथ जोड़ते हैं। और वैसे भी यूनाइटेड नेशन इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हम उस पर भी ध्यान देते हैं। और हर एक बच्चे को ये समझना पड़ेगा और सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसी क्या 4 स्किल्स हैं और ये ऐसी कौन सी चीज है एजुकेशन में, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। उसके बाद देखिए आपका पर्पस क्या है एजुकेशन का और स्किल का, क्यों ले रहे हैं आप एक पर्टिकुलर स्किल को, क्यों एक्वायर कर रहे हैं। यू शुड नो बिकॉज यू वांट एन आउटकम ऑफ योर एजुकेशन। जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है, मुझे इसके बाद मिलेगा क्या, मुझे जॉब कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और क्या ये फन है, क्या ये हैप्पीनेस है, सुबह से उठने से रात के सोने तक जो मैं सीख रहा हूं, क्या ये सब इसमें इन्वॉल्व है। सो ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग में आता है। और देखिए कुछ भी सीखिए, जो आपका मन करता है उसको सीखिए। 24 घंटे सबके लिए बराबर हैं। मैं टेक्नोलॉजी में बहुत विश्वास करता हूं।
मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपने मोबाइल को बाहर रखे, बंद करे, कुछ करे. नो, मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ योर मोबाइल, बट यूज इट पर्पसफुली. किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्या सीखना चाह रहे हो. Let's move together with the skills and technology for the entire hospitality industry. This program has gone live on @ICSI India Live YouTube channel. ये ICSI India का है, International Chamber for Service Industry का. And we extend you a very warm welcome. World over आप कहीं भी हैं, आज मैं आपको सैंडी टॉवर्स लेकर चल रहा हूं. And we will enjoy सैंडी टॉवर्स right भुवनेश्वर में. उस सैंडी टॉवर को आपने देखा. कल रात को हम हॉस्पिटैलिटी के बाद, कल हम आपके साथ टूरिज्म में थे, आज हम हॉस्पिटैलिटी में थे, और कल हम चलेंगे एयरलाइंस के अंदर और आपको एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर कमिंग थ्रू, वी विल डिस्कस विद यू टुमारो ऑन दैट. और मुझे हॉस्पिटैलिटी में और एविएशन में कोई फर्क महसूस नहीं होता. एक ग्राउंड पर, मातृभूमि पर सर्विस कर रहे हैं और एक हवा में 35,000 फुट ऊपर सर्विस कर रहे हैं. But has service industry, we all are in service sector. See you tomorrow. We all will meet tomorrow at 8 p.m. इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. एंड इतनी सब बारिश और स्टॉर्म और लाइट ना होने के बावजूद भी हम इस कार्यक्रम को आज कर पाए, उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं. और देखिए, एक बार चलिए हमारे साथ भुवनेश्वर चलते हैं, सैंडी टॉवर्स को विजिट करते हैं, because they have dedicated the entire hotel to youth. And of course, anybody who is coming and visiting them, they want to give the best of service. जगन्नाथ पुरी भी हो लेंगे और कलिंगा का जो पुराना हम कोणार्क की बातचीत करते हैं, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी चले जाएंगे. We all can enjoy. We extend you a very warm welcome. With these words, ladies and gentlemen, look forward to seeing you tomorrow, meeting you tomorrow at 8 p.m. Thank you. Stay fit, stay fine. Look after yourself. Enjoy yourself. Meeting tomorrow evening at 8 p.m. with yet another powerful evening.